Hello everyone, a very warm welcome to PWUGC Net and a very warm welcome to our session. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड योर ड्रीम इज टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड योर ड्रीम इज टू क्लियर जीआरएफ, तो किस तरीके से आपको अपनी तैयारी अलाइन करनी चाहिए विथ योर जॉब विच इज गोइंग टू गिव यू गारंटीड सक्सेस इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन इन कर लीजिए बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सम गोल्डन रूल्स एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम गोल्डन टिप्स जो आपको डेफिनेटली मदद करेगी इन क्लियरिंग यूजीसी नेट अलोंग विथ योर जॉब। सो जब भी हम यूजीसी नेट की बात करते हैं वी ऑल नो दैट यूजीसी नेट कंप्राइजेस ऑफ टू पेपर, पेपर वन एंड पेपर टू। नाउ द की हियर इज कि आपको अपने जॉब के साथ यू हैव टू मास्टर पेपर वन एंड पेपर टू अकॉर्डिंगली सो दैट विद द लिमिटेड टाइम यू हैव फॉर स्टडी यू एब्सोल्युटली एज द पेपर। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज क्योंकि जहां पे आपके बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं दे कुड बी इन ग्रेजुएशन और दे कुड नॉट बी वर्किंग एंड गिविंग यूजीसी नेट, while on the other hand you have to face a little bit challenge especially in terms of time management. So how can we make this absolutely better for you? आज के सेशन में हम इसको करने वाले हैं। But before we start the session, there is one thing you have to absolutely believe is that your dream do not have an expiration date। और ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार जब आप वर्क करते हैं देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स जो स्पेशली आपकी तैयारी में आते हैं। देर आर लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे आप शायद जो अपना टाइम एलोकेट किए हो यू माइट नॉट बी एबल टू स्टडी एट दैट टाइम। देर माइट बी सर्टन डेज व्हेन यू आर टू मच टायर्ड एंड मे बी यू कांट स्टडी। देर कैन बी सर्टन डेज जहाँ पे आप बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो बट आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा गिर गई है। देर कैन बी मल्टीपल डेज जहाँ पे आप पढ़ नहीं पा रहे हो। So all of these challenges and obstacles will come in your journey when you are trying to prepare for UGC NET. But it is at this time you have to realize that the key here is to actually crack these challenges. And yahi pe you have to have that self-belief, you have to have that faith and that confidence in your potentials and in your dreams that you are definitely going to clear this paper. कई बार क्या होता है हम work कर रहे हैं and you want to become assistant professors but because of lot of personal and professional commitments there is lot of time you have given to that and especially अब आप अपनी UGC net journey शुरू कर रहे हैं। So even when you are little bit you are 40 you are 50 it really doesn't matter। what matters is the day you realize कि आपको UGC net की तैयारी करनी है and how beautifully you integrate it with your life। So it really doesn't matter कि कुछ लोग graduation में तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बिना job की तैयारी कर रहे हैं and you are working with your job, it really doesn't matter। what matters is the day you realize that you have to give this paper and that is the integration which we are going to talk about in today's session। but before you start your preparation एक golden चीज जो आपको अपने से promise करनी है is that you are not going to back out। there will be multiple challenges, there will be lot of time management issues, but this is where you have to tell yourself that this is the dream I have seen and I am going to clear my dream, I am going to achieve success irrespective of जो कुछ भी हमारे पास आए। तो जब आप स्पेशली वर्क करते हैं this life is technically a tussle, it's like a seesaw, it's a seesaw between your aspirations and ambitions and your work जहां पे स्पेशली आपको 8 से 9 घंटे देने हैं। अब the whole theory here is how do you manage time क्योंकि हमें मिलते हैं 24 hours and in this 24 hours you are giving 8 to 9 hours of your time to especially your work। और अगर आप 8-9 घंटे काम करते हैं then you have to go for your work, आप काम करने से वापस आते हो। अगर आप work from home भी करते हो तो sitting in front of the screen whole day it might really make you tired mentally or physically या emotionally or anything। so this is this entire seesaw between aspirations and ambitions and your work और हमें इसी को straight में align करना है where both of them are aligned properly। ना तो हमारा काम इतना ज्यादा हो जाए कि हम अपने ड्रीम्स को भूल जाएं and ना तो since you are a working professional and you cannot leave your job we have to make sure that our seesaw is actually still and straight। तो ये सब टेक्निक्स हमें कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने हैं जो आपकी इस सीसॉ को स्ट्रेट करने में मदद करेगा which is going to make you balance your ambitions and your work together। सबसे पहले अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो these are the three things you have to do when you're preparing for UGC NET। सबसे पहले you have to carve out space for yourself और मैं एक एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। you have to carve out space। carve out space मतलब होता है you have to know the exact time
ऑफ एवरीथिंग. यू हैव टू नो कि कौन से टाइम पे आप वर्क कर रहे हो, यू हैव टू नो कि किस टाइम पे आप ऑफिस में रहोगे, you have to know what is the time you are free, what is the time you can study. So you have to carve out that space. This is the first golden rule towards preparing for any competitive examination. अगर आप specially job कर रहे हैं, you need to know कि कौन से ऐसे time है, कौन से ऐसे days है, which are the days, which are the months, and what is that time जो आप स्पेशली दे सकते हो फॉर योर प्रेपरेशन. एंड दिस इज where you have to be smart. क्योंकि अगर यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी and you are not able to keep pace with it, then the entire strategy goes down the drain. सेकेंड थिंग जो आपको अप्लाई करनी है इज सस्टेनेबल कवरेज एंड स्टडी. व्हाई डू आई से सस्टेनेबल? क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं एंड यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन योर वर्क, फर्स्टली यू कैन नॉट जस्ट सिट द होल नाइट एंड स्टडी. मान लो अगर आप 9 बजे घर आ रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3-4 घंटे ही पढ़ सकते हो, वो भी मैक्सिमम. इफ यू आर रियली टायर्ड, मुश्किल से 2 घंटा आप निकाल सकते हो. यू कैन नॉट गो एंडलेस नाइट्स विदाउट स्लीपिंग. ऐसा नहीं कि आप रात के 9 बजे आओ और आप बिना सोए 6 दिन 4 दिन पढ़ रहे हो. ये मैक्सिमम जाएगा 2 दिन 4 दिन 6 दिन. आफ्टर दैट यू विल फॉल इल, or after that you will start feeling demotivated, and it's humanly impossible. It's going to give you lot of strain physically, mentally, emotionally, psychologically. तो हमें ना एक सस्टेनेबल तरीका बनाना है कि हम नौकरी भी कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और हम पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ रहा है. वी आर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एब्सोल्युटली फिट. सो दिस इज थिंग. क्योंकि जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो, इट कुड बी अ 6 month strategy, इट कुड बी अ 12 month plan. You have to be smart enough to make it sustainable for you. ठीक है. थर्ड, प्रैक्टिस एंड असेसमेंट. दिस इज द थर्ड थिंग. किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए व्हाट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस एंड असेसमेंट. कि चलो हमने स्ट्रैटेजी बना ली, बट यू नीड टू गेट द रिजल्ट. हमें पता कैसे चलेगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें लर्न हो रहा है या नहीं? हाउ वुड वी नो कि जो भी हम पढ़ रहे हैं इज इट अलाइंड विद द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ द यूजीसी नेट पेपर और नॉट? इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो स्ट्रैटेजी बनाए उसमें वी आर कॉन्स्टेंटली सॉल्विंग क्वेश्चंस, वी आर एसेसिंग आवरसेल्फ. आप 6 महीने सिर्फ लर्न कर रहे हो और आपने क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया, बाद में आपको पता चलेगा कि यार मेरे तो 4 टॉपिक वीक है. सो साइमल्टेनियसली इन आवर प्लान वी हैव टू मेक श्योर कि हम चीजों को कवर करें बट हम क्वेश्चन सॉल्व करें. आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, आप कितने भी महारथी हो सकते हो, यू कुड बी द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, बट टू क्लियर यूजीसी नेट यू हैव टू क्लियर सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. और अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं क्लियर कर पाते, कट ऑफ नहीं पार कर पाते, सो दिस जर्नी विल नॉट गो फॉरवर्ड. तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने पढ़ तो सब लिया, बट आर यू एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज? हो सकता है कि एमसीक्यूज में 2 बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है और आपको वहां पे कंफ्यूजन हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार इसमें से क्या होगा. तो टू मेक श्योर कि हम बाद में वो हर्डल में ना पहुंचे, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इन योर डेली प्लान. और क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे इट हैज टू बी अ वेल सेट स्ट्रैटेजी, ताकि आप जो टाइम, एनर्जी और जो भी आप मनी स्पेंड कर रहे हो, इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट इन द एंड. ठीक है. अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे. कार्विंग आउट द स्पेस. अब देखो कार्विंग आउट स्पेस कैसे करना है. सबसे पहले ना आपको अपना डेली स्केड्यूल देखना है. आप कब उठते हो? डेली स्केड्यूल मींस एवरीथिंग. व्हेन डू यू वेक अप? ठीक है. आप सुबह कब उठते हो? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस जा रहे हो, सो व्हाट इज द टाइम जब आप ऑफिस जाते हो? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में ब्रेक लेते हो, जनरली कितने टाइम का ब्रेक है? कैन यू स्टडी समथिंग इन द ब्रेक? ओके. व्हेन डू यू कम बैक? सो आप घर कब आते हो? ठीक है. एंड देन इस टाइम पीरियड में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्री टाइम्स यू गेट? ठीक है. विच डेज आर योर ऑफ डेज? तो सबसे पहले ना हमें ना अपने साथ बैठ के ये खोजना, और ये आपको खुद करना है. सो डू नॉट सिट विद योर फ्रेंड और अनदर कॉलीग, क्योंकि सबके टाइम टेबल अलग होते हैं, सबके रीडिंग टाइम, रीडिंग स्पीड अलग होता है, सबके एम्बिशंस अलग होते हैं. सो यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज. आप बैठ के ये सोचो कि मेरा जो दिन जाता है, वेयर डू आई स्पेंड टाइम इन? कितना टाइम आपको ट्रांसपोर्ट में लगता है, कितना टाइम आपको पहुंचने में लगता है, कितना टाइम आप वहां पे ब्रेक लेते हो, वापस कब आते हो, कब आप फ्री टाइम है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई 2 to 3 आवर्स ऑफ फ्री टाइम. जब हमने अपना वर्किंग स्केड्यूल देख लिया, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि पूरे टाइम पीरियड में, ठीक है, क्या हम 2 से 3 घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं या नहीं.
कैन वी डू दैट? अगर आप ज्यादा निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज कि अगर आपका बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है तो क्या आप 2-3 घंटा निकाल सकते हो हर दिन का? जनरली हाउ मच टाइम कैन यू टेक आउट? दिस इज द सेकेंड थिंग। जब आपने अपना स्केड्यूल को एनालाइज कर लिया, नाउ हाउ मच टाइम यू हैव इन दिस पर्टिकुलर बिजी स्केड्यूल ऑफ योर्स। अब मान लो आपने टाइम एलोकेट कर लिया कि चलो भाई मैं ना 2 घंटे निकाल सकता हूँ इस दिन, किसी दिन आप 3 घंटे निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर वर्कलोड, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बी वेरी श्योर। देखो, क्योंकि आपको ना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जब हम स्पेशली आगे बढ़ रहे हैं, यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल। सो टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो टाइम टेबल है ना वो बहुत ही परफेक्ट बने। ऐसा टाइम टेबल ना हो कि आज मैंने बोला कि ठीक है भाई मैं 10 से 11 पढ़ूंगा, चलो आप एक दिन सो गए, 2 दिन सो गए। अगर 15 दिन 20 दिन वो टाइम पे आप नहीं पढ़ पा रहे हो, इट सिंपली मीन्स कि आपने वो गलत टाइम चूज किया और शायद आपको कोई और टाइम चूज करना चाहिए। सो देन वी हैव टू मेक अ टाइम टेबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आपने अपने लिए टाइम डेजिग्नेट किया है, मे बी आपने मॉर्निंग में 1 घंटा दे दिया या आपने रात को 1 घंटा दे दिया। पहली बात तो क्योंकि आप वर्क कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आपके वर्क पे उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं कि आप सो नहीं रहे हो, अल्टीमेटली आप ऑफिस में परफॉर्म खराब कर रहे हो। सो दैट शुड नॉट हैपन। यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल जो कि आपके वर्क और आपके प्रेपरेशन को बैलेंस कर सके। और टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो कि सस्टेनेबल हो। आपको पता है कि हाँ यार 8 AM आप उठ सकते हो या 6 AM आप उठ सकते हो या रात के 10 से 11 आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले ना यू नीड टू कार्व आउट योर स्पेस एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आप ये स्पेस अपनी पढ़ाई को दे सकते हो। चलो किसी एक दिन नहीं दे पाए, 2 दिन नहीं दे पाए, बट कंटिन्यूसली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर दिन ही आपका टाइम टेबल खराब हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो देन व्हाट विल हैपन इज, एक तो आप पीछे चले जाओगे, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। द मोमेंट प्रोग्रेस नहीं होगा आप टेंशन लेने लगोगे, पैनिक शुरू होने लगेगा, यू विल फील डीमोटिवेटेड, यू विल स्टार्ट हैविंग एंजाइटीज। ओके, सो फर्स्ट इज कार्विंग आउट द स्पेस। मेक श्योर ये पहला स्टेप जो हम ले रहे हैं, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इसमें कोई गलती ना हो एंड यू आर एब्सोल्युटली सेटल्ड ऑन द पार्ट कि आपको क्या करना है। जब आपने हर कुछ कर लिया, आपने टाइम निकाल लिया, यू टेक आउट द स्पेस, नाउ कम्स टू पढ़ना कैसे। सबसे पहले चलो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ये कर लिया कि चलो भाई मेरे पास ना 3 घंटा हर दिन पढ़ने को है। सपोज आपने ये कर लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सी द सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले चाहे आप कोई भी आपका पेपर 2 हो, फर्स्ट यू लुक एट द सिलेबस, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है, एंड पेपर 2 का सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस को देखो। सिलेबस को देखने के बाद आप एक बार सिलेबस को एनालाइज कर लो। देयर आर सो मेनी वीडियोस, ठीक है। सो यू एनालाइज द सिलेबस कि ये सारे एरियाज में कौन से ऐसे एरियाज है जो हमेशा आ रहे हैं या जो कम आते हैं, ठीक है, या जो डबल ट्रिपल टाइम्स रेकर होते हैं। मतलब इस सिलेबस में कौन एरियाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है कि ठीक है यार 10 इयर्स में ना ये पार्ट सबसे ज्यादा है, या ये टॉपिक 10 इयर्स में 8 टाइम्स है। तो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो ना पेपर में मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं। आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, यू हैव टू एनालाइज द सिलेबस इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। जब आपने सिलेबस को एनालाइज कर लिया, आपने कोई टॉपिक उठाई, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टॉपिक से शुरू करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ना आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, बिकॉज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट। सबसे पहले स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बेसिक्स बहुत हल्के होते हैं, तो अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग और आप पढ़ सकते हो या आपने ब्रेक में कर लिया, यूजुअली तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जनरली सबसे पहले क्या करोगे, आप ना अपने ब्रश अप करोगे बेसिक्स को। हर दिन 2 से 3 घंटे जो भी आपको मिलता है, आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। या तो सीधे सीधे आप पेपर 1 और पेपर 2 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, कि मेरे को 3 घंटा मिलता है तो 2.5 घंटा आपने पेपर 1 पढ़ लिया, 2.5 घंटा आपने पेपर 2 पढ़े। ये कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा नहीं यार मैं ना पहले पेपर 2 खत्म करूंगी, मे बी 2 महीने, फिर आई स्टार्ट विद पेपर 1। आप ऐसे भी कर सकते हो। सो यू कैन डिवाइड द टाइम एज पर योर फिजिबिलिटी, कि आपको क्या सूट करता है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप कोई एक सब्जेक्ट लेके चलो, है ना, क्योंकि 2 घंटे में ना आपका पेपर 1 होगा ना पेपर 2 होगा। सो यू कैन डिवाइड द 2 to 3 hours कि इसमें कितना आप पेपर 1 करोगे, कितना पेपर 2 करोगे, या आप पेपर 1 या पेपर 2 किसी से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मंथली टारगेट्स होने चाहिए। मंथली टारगेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आप हर दिन तो एक टॉपिक नहीं खत्म कर पाओगे। हो सकता है किसी टॉपिक खत्म करने में आपको 3 4 5 दिन लग जाए, तो मेक मंथली टारगेट्स। अब मंथली टारगेट्स में ना आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 के टारगेट्स बनाओ।
एंड रिमेंबर द टारगेट शुड बी सस्टेनेबल, ऐसे टारगेट्स नहीं जो मुझे पता है कि पूरा नहीं होंगे, ठीक है। सो पेपर 1 प्लस पेपर 2 मंथली टारगेट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि ठीक है ये महीने पेपर 1 का हम लोग फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला कि ठीक है ये महीना पेपर 1 का फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन करेंगे, पेपर 2 का हम रिसर्च एप्टीट्यूड करेंगे एंड फॉर एग्जांपल आईसीटी पढ़ेंगे। तो आप ना ऐसे मंथली टारगेट्स बना लो एंड पेपर 2 जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर 2 है, फॉर एग्जांपल आपने वहां पे 2-3 टॉपिक लिख लिया। अब मंथली टारगेट्स को आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मंथली टारगेट्स को मेक इनटू वीकली टारगेट्स, ठीक है, और वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में आप कन्वर्ट करो, ठीक है। इससे क्या होगा, कभी कभी क्या हो सकता है आपके डेली टारगेट्स कंप्लीट ना हो, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, क्योंकि फिर आप वीकली टारगेट्स पे जाओ कि चलो यार मेरा आज नहीं हुआ, बट कल आप थोड़ा जल्दी उठ गया, थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया और आपने खत्म कर लिया। मंथली टारगेट शुड बी समथिंग जो हमें कोशिश करनी कि हमारी ना बिगड़े, क्योंकि अगर आपने 6 मंथ्स प्लान बनाया है, 7 मंथ्स प्लान बनाया है, तो धीरे धीरे वी हैव टू मेक श्योर कि ये गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर मंथली टारगेट्स गड़बड़ होने लगेंगे तो फिर प्रोग्रेस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऑल्सो यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि जैसे मान लो कभी आप घूम रहे हो, आप जा रहे हो, आप फॉर एग्जांपल यू ट्रैवल, आपको ट्रैवल करते समय 1.5 घंटा लगता है, तो एक दिन पहले आपने कुछ पढ़ा है और मान लो आपको लगता है ना अच्छे से लर्न कर लिया है, तो आपने अपने फोन में ना उसका फोटो खींच लिया या अपनी पीडीएफ अपने फोन में ले लिया, जनरली आपने क्या किया 10 मिनट उसको ना गो थ्रू कर लिया। इससे क्या होगा कि आप टाइम भी सेव करोगे एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जॉब पे पढ़ो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सब देख रहे हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, समटाइम्स पीपल डोंट लाइक इट, तो अगर वो आपको सूट नहीं करता है तो ठीक है, बट जनरली अगर मान लो ट्रैवल कर रहे हो या आपके पास थोड़ा ब्रेक है या थोड़ा टाइम का बफर आपके पास है और एनवायरमेंट ऐसा है, तो यू कैन ऑलवेज रिवाइज। कोई नई चीज आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि इन दैट एनवायरमेंट नई चीजें नहीं आपको सेटल डाउन करेंगी, नई चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। तो हमेशा आई वुड सजेस्ट इज जब आप ऑफिस में हो या जा रहे हो, इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, जो भी आपने एक दिन पहले पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको टाइम भी कम लगेगा, प्लस वो टाइम जो वेस्ट हो रहा है ना उसमें आपने 1% थोड़ा अपना प्रोडक्टिविटी आपने शुरू कर लिया। ऑल्सो कीप द सोर्सेज लिमिटेड। आप देखो यहीं पे आपको चूज करना है अमंग बेस्ट सोर्सेज, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, सो यू कॉम्प्रोमाइज ऑन सोर्सेस की यार ये ना थोड़ा इजी है इसको ले लेते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज आर द बेस्ट सोर्सेस, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम एनर्जी एफर्ट्स, यू आर गिविंग योर एवरीथिंग, तो सोर्सेस शुड नॉट बी दैट थिंग जो आपका सिलेक्शन रोक रहे हैं। ऑलवेज चूज दी बेस्ट सोर्सेज एज पर यूजीसी ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट सोर्स हो, बट अगर वहां से क्वेश्चन निकल रहा है वो आपको एलिमिनेशन में मदद कर रही है, गो फॉर द हाईएस्ट एंड द बेस्ट सोर्सेस। और कैसे पता चलेगा सोर्स क्या है, अगर आप पीवाईक्यूज एनालाइज कर रहे हो, अगर आप सिलेबस देख रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली सोर्स को देख के पता लग जाएगा कि भाई जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या ये बुक मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्वेश्चंस के आगे ले जा रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि सोर्सेज शुड बी द लास्ट थिंग यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट, यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कि यार मैंने बेस्ट सोर्स से पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आई हैव बीन ट्रेन्ड इन थ्रू दैट सोर्सेज, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बेसिकली स्टार्ट स्टडिंग लिटिल बिट। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, जब आपने अपना फाउंडेशन बनाना शुरू कर लिया, जब आपने अपना बेस बनाना शुरू कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू कर लिया, आपने हल्का फुल्का रिवीजन करना शुरू कर दिया, जब भी आप कोई एक टॉपिक पढ़ो यू हैव टू नो कि आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज। आप 5 चैप्टर्स लर्न कर लिए और बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पहले वाले के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए और पीवाईक्यूज के अलावा मेक श्योर कि उस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। इससे दो चीज होगा, इससे पहले तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना जो आप सॉल्व कर सकते हो आप वो सॉल्व करो, देयर आर लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको लगता है पता नहीं ये कहां से आ गया है, कभी सुना नहीं, उसको आप लर्न करते जाओ। सो प्रीवियस ईयर्स को यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट, यू हैव टू टेक प्रीवियस ईयर्स लाइक अ स्टडी मटेरियल की जो सॉल्व हो गया, जो हमें नया मटेरियल मिला उसको हमने स्पेसिफिकली नोट कर लिया या आपने फोटो खींच लिया, आपने अपने फाइल में रख लिया और यू मार्क इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितना हो सके उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो। इट इज ओनली व्हेन यू सॉल्व मोर क्वेश्चंस यू रियलाइज कि आपके इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है, आपकी वीक एरियाज क्या है, कौन से क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, कौन से आपके स्ट्रेंथ्स है। So only when you solve all these, you will come to know your strengths and you will come to know your weakness. और एग्जाम के बहुत टाइम पहले अगर ये हमें पता चल जाएगा ना तो आप स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हो और वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में बदल सकते हो, ठीक है।
सो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिस इज द साइकिल यू हैव टू फॉलो। देखो हमें पढ़ाई करनी है, जब हमने स्पेशली पढ़ाई कर ली, आपने कोई टॉपिक खत्म कर लिया, देन स्पेशली उस टॉपिक के बाद हमें उस टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। तो या तो आपने ऑन द वे रिवाइज कर लिया, आप घर आके रिवाइज कर लिए, वो आप पे जो आपको सूट करे, ठीक है। जब आपने वो टॉपिक को रिवाइज कर लिया, उसको टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर्स इंक्लूड कर लो, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूड कर लो। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो नेट के साथ साथ सेट के पेपर्स आते हैं, टीजीटी पीजीटी का पेपर आता है, ठीक है। कोई भी पेपर सॉल्व कर लो। देखो हिस्ट्री डजंट चेंज और कोई भी टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस डजंट चेंज, क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, बट अगर आपके पास क्वेश्चंस का थोड़ा शॉर्टेज है तो यू कैन ऑलवेज यूज एनी एग्जाम पेपर। क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, योर माइंड हैज टू बी इन दैट, ठीक है। तो जब आपने टेस्ट दे दिया, देन एसेस योरसेल्फ। एसेस कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि विच क्वेश्चंस आर गोइंग रॉन्ग, ठीक है। व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट इज माय वीकनेस, ठीक है। और पेपर 1 में आपको ये देखना है कि आपका मैथ्स वीक है, या आपका एप्टीट्यूड पार्ट वीक है, या आपका आईसीटी एनवायरनमेंट वाला सेक्शन वीक है। तो हमें ना एक्सेस करना है। मान लो कोई टॉपिक है तो उसका कौन सा सब टॉपिक हमेशा गलत हो रहा है। सो दिस इज हाउ ना वी विल एक्सेस आवरसेल्फ। एंड रिमेंबर, जस्ट बाय टेस्टिंग योरसेल्फ, डू नॉट बी डीमोटिवेटेड। हो सकता है पहले 2 टेस्ट में आपको 50 में से 10 आए, 15 आए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। रिमेंबर इट्स अ टेस्ट मैच, हम चेक कर रहे हैं क्या गलत हो रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर कुछ गलत होता है, इट रियली डजंट मैटर, ठीक है। एसेस करिए, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। और जब हमें पता लग गया ना कि मान लो ये टॉपिक में हमेशा गलत हो रहा है, या ये टॉपिक मैंने पढ़ा था बट मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, या ये टॉपिक अच्छे से लर्न नहीं हुआ है, अगेन गो बैक टू स्टडिंग। फिर वो टॉपिक पढ़ो जब आपको लगता है हाँ यार मैंने पढ़ लिया, फिर उसको रिवाइज करो, फिर रिवीजन करने के बाद उस टॉपिक का टेस्ट दो, फिर अपने आप को एसेस करिए, फिर वीकनेस आइडेंटिफाई करो। ये साइकिल चलते रहेगी। और अगर आपने ये कर लिया ना, तो विद इन नो टाइम यू विल एब्सोल्युटली गेट टू नो योर फॉल्ट्स एंड योर वीकनेसेस, जो हमें जेआरएफ क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस एंड असेसमेंट। यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ। तो सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, हम मॉक टेस्ट पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज लेंगे। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर, कई बार आप प्रेपरेशन करोगे, कई बार स्पेसिफिकली यू विल सॉल्व क्वेश्चंस, बट आपको लगेगा यार मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। कई बार 5-6 मॉक्स में सेम आ रहा है, मे बी 5th मॉक में और कम आ गया। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रेपरेशन, ओके। सो डू नॉट वरी स्पेसिफिकली अगर ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, कि भाई मेरा ब्रेक आ गया, हो सकता है आप 4 दिन ही पढ़ो। व्हाट रियली मैटर्स इज हाउ यू बाउंस बैक, ठीक है। हम कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेक श्योर कि चलो 4 दिन चला गया बट 5वें दिन कैसे आई कैन कम बैक ऑन ट्रैक। इट इज ऑल अ माइंड गेम, क्योंकि आपको मेंटली स्टेबल होना चाहिए। यू हैव टू बी बैलेंस्ड मेंटली, कि जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना इट्स एक्चुअली अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी। तो दिमाग को कूल रखना है, काम रखना है। डोंट जज योरसेल्फ, ओके, डोंट बी डीमोटिवेटेड। ऑलवेज ट्राई टू सी कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है सो दैट यू कैन रेक्टिफाई, ठीक है। ऑल्सो एक्सेस योर प्रोग्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। एज आई सेड, हो सकता है कभी कुछ ज्यादा टाइम हो गया, बहुत बार नहीं पढ़े, इट्स हाउ यू बाउंस बैक, ठीक है। ऑल्सो स्टडी इन फेजेस, पेस करिए। देखो कई बार क्या होता है ना, हम 10 घंटे काम कर रहे हैं, यू कम बैक, यू विल बी सुपर टायर्ड। तो कोई टेंशन नहीं, आप ऐसा मंथली टारगेट्स बनाओ, ऐसा वीकली टारगेट्स बनाओ जहां पे यू आर गेटिंग टाइम टू रिलैक्स। ऐसा नहीं कि आप 15 घंटे काम करके एंड देन आप एकदम से बुक लेके बैठ गए, ऐसे आपकी प्रोडक्टिविटी भी गिर जाएगी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील लाइक ऑन गिविंग अप योर ड्रीम्स, यू विल फील लाइक कि नहीं हो रहा है। सो पेस योरसेल्फ, ओके। आप 1 घंटा रेस्ट कर लो, म्यूजिक सुन लो, रिजुविनेट हो जाओ, मेडिटेट हो जाओ, जो भी आपको सूट करता है आप वो करो। पढ़ाई को वैसे पेस करो। कुछ बहुत बड़े टॉपिक्स हैं तो उसको 5 दिन दे दो, कुछ छोटे टॉपिक्स हैं उनको 2 दिन दे दो। तो इस ऑल ऑफ दीज कैन बी वेरिड। एक चीज आप लोगों को जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। This is one golden mantra you have to follow. You have to be especially very flexible, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या, इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड स्ट्रैटेजी, यू विल डेफिनेटली क्लियर जेआरएफ, ठीक है। डिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिन क्यों, क्योंकि हमने ना अपने लिए कुछ टाइम मैनेजमेंट की चीजें डिस्कस की है। यू हैव टू नो कि भाई मेरे को ना घर जाके 2 घंटे पढ़ना है, या मेरे को सुबह उठ के पढ़ना है। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन।
You have to be motivated. You always need to know why are you doing it. क्योंकि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो you always have that buffer कि at least I'm working somewhere, so you can be a little bit lethargic. You might not take your dream seriously. You should always know why. क्योंकि आपका ये सपना है ना, you want to do it, it's your dream, you always wanted to be an assistant professor. तो अपने आप को ना visualize करो. You want to make yourself proud, you want to make your parents proud, this is what you deserve, this is where you want to be, this is where you see yourself. तो motivate. एक टाइम बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हर दिन उठना पड़ेगा, जब हर दिन टॉपिक्स नहीं खत्म होंगे, जब हर दिन आपको डबल ट्रिपल बार पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा, इट इज वेयर डिसिप्लिन विल मैटर. कई बार आपको लगेगा कि यार सो जाते हैं, छोड़ो 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, 5 दिन बाद पढ़ लेंगे. दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ योर गोल कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो, एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. समटाइम्स देयर विल बी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स, बट ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं है जिसने लाइफ में चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम नहीं किया हो या जिन्होंने फेस नहीं किया. सो इट्स एक्चुअली योर जर्नी टू बिकम समवन वेरी बिग, है ना. तो डिसिप्लिन is very important, क्योंकि अगर आपके पास प्रेशर ज्यादा है, if you give in to that, then the journey is over. Same way motivation, always have a self talk with yourself, always do that. I always tell my students, have a self talk. अपने से बात करो आप कि यार कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज मेरे को ये लर्न नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज मेरी प्रोडक्टिविटी लो है. द डे यू स्टडी रियली वेल, पैट योरसेल्फ, है ना. अपने आप को बोलो कि यार आज तो मैंने अच्छा पढ़ा है. तो ये सेल्फ टॉक, खुद को मोटिवेशन देते रहिए, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मोटिवेटेड स्पेसिफिकली. सो डोंट लुक फॉर वैलिडेशंस, डोंट लुक फॉर मोटिवेशंस आउटसाइड योरसेल्फ, मोटिवेट योरसेल्फ, है ना. एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी में वही है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्केड्यूल, ऐसा स्केड्यूल जो कि सस्टेनेबल है. ठीक है, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड रिमेंबर इट्स अ जर्नी. स्क्रैच से शुरू करेंगे एंड वी विल बी मास्टर्स ऑफ द सब्जेक्ट. वी नीड टू कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड वी नीड टू कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस. अगर हमने ये कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो किया एंड वी आर डूइंग स्मार्ट स्टडी मतलब आपने प्रॉपर सिलेबस को एनालाइज कर लिया. ठीक है, यू हैव कैच्ड ऑन टू द ट्रेंड्स ऑफ द पेपर. ठीक है, आपने पीवाईक्यूज को एज अ स्टडी मटेरियल इंटीग्रेट कर लिया. ठीक है, हर टॉपिक के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, सो इफ यू आर डूइंग दिस स्मार्ट स्टडी, क्योंकि देखो हर चीज जो सिलेबस में लिखा है वो जरूरी नहीं कि वो आता है, वो जरूरी नहीं वो इंपॉर्टेंट है. सो इट्स अ पार्ट, सिंस इट्स अ कंपटीशन, देयर हैज टू बी अ स्मार्ट स्टडी. आपको पता है आपका पेपर 1 में मैथ्स वीक है, तो आप उससे शुरू करो. यू नो कि सर्टेन एरियाज आर समथिंग जो आपके लिए ट्रिकी है, तो आप उनके नोट्स बना लो. सो यू हैव टू बी स्मार्ट. हर चीज के नोट्स नहीं बनेंगे, जो चीजें इजी है उसको बुक से पढ़ लो. दिस इज वेयर यू नीड टू ग्रैब कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली नीड टू क्लियर द पेपर, एंड इफ यू डू ऑल ऑफ इट, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग जीआरएफ. थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, थोड़ी मेहनत और लगेगी, बट इफ इट्स योर ड्रीम एंड वन डे इफ यू क्लियर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यू गेट जीआरएफ, इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट. सो डे 1 से एक गोल सेटअप करिए एंड स्टार्ट अ वेरी डिसिप्लिन प्रिपरेशन. एंड इफ यू डू दैट, ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग जीआरएफ एंड फ्रॉम फुलफिलिंग योर ड्रीम्स. सो इन चीजों को याद रखना है. बट लाइक आई सेड, बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी टू क्लियर यूजीसी नेट विथ योर जॉब, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, क्योंकि ये 3 चीजों का ही खेल है. एक तो फोकस, एक फोकस के साथ साथ यू हैव टू बी सुपर मोटिवेटेड, एंड थर्ड यू हैव टू हैव अ बेस्ट एंड अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी. क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वी डू नॉट हैव टाइम टू रीचेंज आवर स्ट्रैटेजी, रीस्ट्रक्चर आवर स्ट्रैटेजी. एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हमें डिसाइड करनी है with which we have to move forward. But one thing you have to remember is you have to be flexible, because there will be times जहाँ पे challenges आएंगे, there will be times where there will be obstacles, there will be times जब पढ़ाई नहीं होगी, there will be times जब unforeseen circumstances आएंगे. But if you're a working professional, you have to be a little bit flexible, and what important matters is आप कैसे bounce back करते हो. If you're able to bounce back, no one can stop you from creating history and living the life of your dreams. So all the very best. Start your preparation with a bang.